معزز طلباء و طالبات، تاریخ اسلامی ہم پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہمارے نصاب کا پہلا حصہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے دور خلافت کی مختلف ابواب کو پڑھتے ہوئے اب ہم خارجی فتوحات کا جو حصہ ہے اور جس سے کتاب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے طور پر ذکر کیا ہے، وہ ہمارے آج کے درس میں شامل ہے۔ تو آج کا درس خارجی فتوحات کے شام کی فتح کے حصے ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کے فروغ میں جو عظیم ریاستیں ہوتی تھیں، جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک فارس جسے ایران کہتے ہیں اور دوسری روم۔ ایران اور عراق یہ فارس کے کنٹرول میں تھے اور شام یہ روم کے کنٹرول میں تھے۔ تو اس سے پہلے ایران کی فتح کے تعلق سے جو باتیں یہاں بیان کی گئی وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج شام کی فتح ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں شام کی فتح، ملک شام اس وقت رومیوں کے کنٹرول میں تھا، اور رومیوں سے مسلمانوں سے اس سے پہلے بھی کئی بار سابقہ پڑ چکا تھا، یعنی رومیوں میں اور مسلمانوں میں اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی ذریعے سے تعلق قائم ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا تعلق تو وہ خط تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کے نام لکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری میں یا پھر 7 ہجری کی ابتدا میں مورخین کے اختلاف کے روشنی میں یا تو 6 ہجری کے آخر کی بات ہے یا پھر 7 ہجری کے اوائل کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے تھے ان میں روم کے بادشاہ قیصر کو بھی خط لکھا تھا، اور یحییٰ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ خط ہرقل کے پاس بھیجا تھا، اور اس میں اسے اسلام کی دعوت دی، اور اس خط کے نتیجے میں قیصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف واقف ہوا تھا بلکہ وہ پہچان بھی گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن جب دیکھا کہ اس کے دربار میں جو فوج کے کمانڈر ہیں اور جو دینی رہنما وغیرہ ہیں، مذہبی رہنما، وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو وہ پھر اپنے نفسیانتی پر باقی رہا۔ تو مسلمانوں کو سب سے پہلے جو سابقہ پڑا تھا روم سے، وہ سن 6 ہجری یا 7 ہجری، سن 6 ہجری کے آخری میں یا 7 ہجری کی ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا قیصر کے نام، اس خط کے ذریعے تھا۔ اس کے بعد 8 ہجری میں غزوہ موسیٰ ہوئی تھی۔ موسیٰ کے مقام پر رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ ہوئی تھی جسے غزوہ موسیٰ کہتے ہیں، اور اس کے بعد تیسری دفعہ سن 9 ہجری میں جو غزوہ تبوک واقع ہوئی، تبوک کے مقام پر، اور مسلمانوں کی ہیبت اور رعب رومیوں کے دل میں پیدا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگ کے لیے نہیں آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں قیام کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے تھے۔ اور چوتھی دفعہ اس وقت جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آخری ایام میں اس بات کی اطلاع ملی
कि रूमी मुसलमानों पर हमला करने के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार कर रहे हैं, तो आपने उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर तैयार किया, जो जैश उसामा के नाम से मारूफ है, सन 11 हिजरी में। लेकिन आपकी बीमारी की वजह से, आपके मर्ज की वजह से ये लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नहीं जा सका। अलबत्ता अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में ये लश्कर रोम गयाली था और वहां कामयाब होकर वापस हुआ। और फातिमा सादिका खालिद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुत्तकीन से जंग कर रहे थे, तो कुछ रूमी थी जज़ीरे अरब के शुमाल में, कुछ रूमी थी उनकी मददगार थे, तो उनके साथ उनका टकराव हुआ। उनके साथ जो शर्तें हुई थी, खालिद बिन साद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुत्तकीन से जो शर्तें हुई थी, उनमें कुछ रूमी भी शामिल। तो इस तरह मुसलमानों को रूमियों से पहले भी सादिका पड़ चुका था। और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जब खलीफा बने, तो उन्होंने अल्लाह ताला के दीन की दावत को वहां तक पहुंचाने के लिए, रूमियों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ लश्कर तैयार किए। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने सन 13 हिजरी की इब्तिदा में शाम के लिए 5 फौजी आपने तैयार की, 5 लश्कर आपने शाम के लिए तैयार किए। पहला लश्कर था अबू उबैदा आमिर बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला की क़ियादत में, और उन्हें हिंद और हुमा की तरफ भेजा था, जो शाम के शुमाल के इलाके, मुल्क शाम के शुमाल में हिंद और हुमा जो इलाके हैं, उनकी तरफ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला को भेजा था। ये पहला लश्कर था। दूसरा लश्कर यजीद बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला की क़ियादत में, और उन्हें दिमिश्क की तरफ रवाना किया। तीसरा लश्कर शुरहबील इब्न हसना रज़ियल्लाहु ताला की क़ियादत में, और उन्हें उर्दू की तरफ भेजा। चौथा लश्कर था अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला की क़ियादत में, और उन्हें फ़लस्तीन की तरफ भेजा। ये 4 लश्कर थे जो शाम के मुख्तलिफ मकामात पर भेजे गए थे। और 5वां लश्कर इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला की क़ियादत में था, और उनका काम था, और उनको जिम्मेदारी दी गई थी वो ये कि वो इन लश्करों की मदद करें। इन लश्करों में जिस तरह को मदद की जरूरत पेश आएगी, तो वो उनकी मदद करें। तो 5 लश्कर तैयार किए थे, लेकिन 4 लश्कर मखसूस मकामात की तरफ भेजे गए थे, 1 लश्कर उनकी मदद के लिए थे। रोमियों को जब पता चला कि मुसलमानों ने उनसे जंग करने के लिए 4 लश्कर भेजे हैं, तो उन लोगों ने भी मुख्तलिफ कमांडरों की क़ियादत में 4 मुख्तलिफ लश्कर तैयार किए, मुसलमानों के चारों लश्कर से मुकाबला करने के लिए। मुसलमानों के इन चारों लश्करों में जो फौजी थे, उनकी तादाद 30,000 अफराद। चारों लश्कर में मुसलमान 30,000 की तादाद में मौजूद थे, लेकिन रूमियों ने जो लश्कर जमा कर लिए, वो इस किताब में 1,50,000 लिखा हुआ, 1,50,000 का लश्कर उन्होंने जमा किया था मुसलमानों से जंग के लिए, और वो भी अपने 4 लश्करों में तकसीम कर चुके थे। लेकिन तारीख की बात की किताबें में आता है कि ये 2,40,000 थे। 2,40,000 फौजी थे जो रूमियों ने मुसलमानों से जंग के लिए तैयार किए थे। लेकिन उन लोगों ने भी 2,40,000 फौजियों को 4 लश्करों में तकसीम कर रखा था। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को तमाम हालात का इल्म हो रहा था, यानी बाकायदा उनके पास इस तरह पहुंच रही थी, और वो मुसलमानों को मुख्तलिफ तरह की हिदायतें दे रहे थे। उन्हें जब इत्तला मिली कि रूमियों ने मुसलमानों से मुकाबले के लिए इतना बड़ा लश्कर तैयार किया है, तो उन्होंने फौरन मुनासिब समझा कि मुसलमानों को एक जगह जमा कर दिया जाए।
ताकि मुसलमानों की तादाद एक मुनासिब तादाद हो जाए और वो सही तरीके से उनसे जंग कर सके। आखिरकार मशवरा हुआ तो अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ने मशवरा दिया कि यरमूक के मकाम पर जमा हो, तो मुक़द्दिसीन रज़ियल्लाहु तआला ने इसे मुनासिब समझा और यरमूक के मकाम पर ये चारों लश्कर जमा हो गए। अबू उबैदा बिन जर्राह का लश्कर, यजीद बिन अबी सुफियान का लश्कर, शुरहबील इब्न हिज़्ना का लश्कर और अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला का लश्कर और साथ में इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु तआला ये सारे वहां जमा हो गए। लेकिन जाहिर है कि ये जंग तादाद के एतबार से भी मुसलमानों की जो तादाद थी वो भी कम थी और उनके पास जो हथियार थे मुशरिकीन के मुकाबले में वो भी कम थे और यकीनन ये हालात मुसलमानों के लिए काफी खतरनाक थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फौरन खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला को लिखा जो इराक में थे। इराक में ईरानियों के साथ जंग में मशगूल थे, तो उन्हें लिखा कि वो आधा लश्कर अपने साथ लें और आधा लश्कर मुसन्ना बिन हारिसा शीबानी रज़ियल्लाहु तआला जो फारसियों से लड़ रहे हैं ईरान में फारिस में, उनके पास छोड़ दें। यानी फारिस के लश्कर की क़ियादत मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला के हवाले कर दें और आधा लश्कर वहाँ छोड़ दें और आधा लश्कर लेकर वो यरमूक की तरफ जाए। खालिद रज़ियल्लाहु तआला इराक से शाम की तरफ बड़ी तेजी के साथ आए। रास्ते में उनकी कई शक्तियां होती रही, लेकिन वो तमाम मुकाबलों को तमाम लश्करों से मुकाबला करते हुए इस कदर तेजी के साथ आए कि तारीख लिखने वाले हैरान है कि इतनी तेजी से खालिद रज़ियल्लाहु तआला मुख्तलिफ फौजियों से झड़ते होने के बावजूद भी वो शाम कैसे पहुंचे। तो बहरहाल बड़ी तेजी के साथ वो पहुंचे और वहां पहुंचते ही फौरन बात तारीखी रिवायतों के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने खुद बता दिया था कि जब ये सारे लश्कर जमा हो जाएंगे तो फौजों की क़ियादत यानी इस लश्कर की क़ियादत खालिद रज़ियल्लाहु तआला करेंगे। बाद रिवायतों से आता है कि खालिद रज़ियल्लाहु तआला जब वहां पहुंचे तो उन्हें कहा कि सबसे पहले हम लोग अपनी मुकाबिल मुकर कर देते ताकि आपस में हम एक क़ियादत से जंग कर सकें और फिर आपस में हम पूरी तरह तंसीब कर सकें और सारे उमूर की सही तौर पर तरतीब कर सकें। तो उसके बाद सारा लश्कर खालिद रज़ियल्लाहु तआला की क़ियादत में जमा हो गए। जब ये दोनों फरीक जमा हो गए तो रूमी पहले पहुंचे वहां यरमूक के मकाम पर। रूमी पहले पहुंच गए और यरमूक में जो नहर है उसके करीब उन्होंने पड़ाव डाला। एक तरफ उनके नहर थी और दूसरी तरफ खंडक। तो गया कुदरती तौर पर वो अच्छी तरह से आपको महसूस कर चुके थे, यानी कुदरती हिसाब था उनके दोनों जानिब, एक तरफ नहर थी और एक तरफ खंडक था, तो दोनों तरफ से वो अपने आप को महसूस कर चुके थे। तो एक कुदरती हिसाब में वो महफूज थे और वहां उन्होंने पड़ाव डाला। मुसलमानों ने उनके सामने पड़ाव डाला और उसके बाद खालिद रज़ियल्लाहु तआला ने जंग की जो तरतीब थी उस तरतीब के बारे में अपने लश्कर को हिदायत देना शुरू किया। खालिद रज़ियल्लाहु तआला ने सूरत हाल के पेश नजर जो मुसलमानों के सामने थी, एक बड़ा लश्कर उनके सामने था और हथियारों के एतबार से भी मुसलमानों से बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो खालिद रज़ियल्लाहु तआला ने जंग की जो तरतीब थी या फिर जो हिकमत अमली अपनाई वो जंगों की आम हिकमत अमली से मुख्तलिफ। उन्होंने ये हिकमत अमली की कि अपनी फौज के दस्ते बनाए मुख्तलिफ 900 आदमी पर मुश्तमिल उन्होंने मुख्तलिफ दस्ते बनाए, यानी एक दस्ते में 900 अफराद थे और ऐसे उन्होंने 38 दस्ते बनाए, यानी 38 दस्ते बनाए। उन्होंने जंगी हिकमत अमली के तौर पर मुसलमान फौजों के 38 दस्ते बनाए। दस्ते बनते हैं एक फौजी गिरोह को, एक फौजी जमात को, फौजों पर मुश्तमिल एक जमात को। तो उन्होंने 38 गिरोह या 38 दस्ते बनाए, हर दस्ते में 900 अफराद। फिर अपने फौज की तकसीम की
कल्ब, मैमना, कल्ब के बारे में इससे पहले बताया गया था कि कल्ब जो मुसलमानों जो जंग में फौजों के दरमियान में होती जो फौज का वो हिस्सा जो जंग में दरमियान में होता है, और मैमना जो कि दाएं जानिब होता है और मैसना बाएं जानिब होता है। मुकदमा ये आगे होता है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी आमतौर पर इंतजामी उमूर को निगरानी करते हैं और इंतजामी उमूर संभालते हैं, और साफा ये पीछे होता है और आमतौर पर इसकी जिम्मेदारी की इंतजामी उमूर से मुताल्लिक होती है और फौज की हिफाजत होती है। तो उन्होंने अपने फौज के जो तरतीब जंग के लिए होनी चाहिए, हल, मैमना, मैसरा, मुकदमा और साफा, अपनी फौज की तरतीब की, और कल्ब की जिम्मेदारी यानी कल्ब की क़ियादत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला की और अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला की हुई। मैमना में शुरहबील इब्न हसन रज़ियल्लाहु तआला को रखा और मैसरा में यजीद रज़ियल्लाहु तआला को रखा। इसके बाद जब दोनों फौजें आमने सामने हो गई और रोमियो ने भी अपने लश्कर की तरतीब दे दी और खालिद रज़ियल्लाहु तआला ने भी अपने लश्कर की तरतीब दे दी, तो खालिद रज़ियल्लाहु तआला ने उससे पहले दोनों फौजों में कुछ गुफ्तगू हुई, खालिद रज़ियल्लाहु तआला ने इस्लाम की दावत दी, ये तमाम बातें हो गई। उसके बाद जब जंग का आगाज हुआ तो सबसे पहले खालिद रज़ियल्लाहु तआला ने आहा इब्न अम्र और इकरमा बिन अबी जहल जो कल्ब में कल्ब के दोनों जानिब मौजूद, यानी कल्ब का जो दस्ता था, कल्ब के दस्ते में दोनों जानिब, एक जानिब आहा रज़ियल्लाहु तआला थे, दूसरी जानिब इकरमा रज़ियल्लाहु तआला थे, उनको जंग का आगाज करने का हुक्म दिया। और वो उनको इस बात की ताकीद की कि कोशिश इस बात की करे कि रोमियो ने जो कुदरती हिसाब में वो अपने आप को महसूस कर चुके हैं, किसी भी तरह उनको उस हिसाब से निकालें, क्योंकि जब तक वो उस हिसाब में है उस वक्त तक उनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने आका रज़ियल्लाहु तआला और इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु तआला को इस बात का हुक्म दिया था कि इस बात की कोशिश करे कि कोई भी ऐसी तरकीब करे कि वो अपने जो हिसार में है उस हिसार से या महफूज पनाहगाह से वो बाहर निकले और जंग मैदान में आकर जंग करे। तो उसके बाद जब कल्ब का हमला किया गया तो खालिद रज़ियल्लाहु तआला की जंग जारी रही और पूरी दिन जंग जारी रही, यहाँ तक कि इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु तआला ने जब देखा कि जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है तो उन्होंने कहा कि कौन है जो मेरे हाथों मौत की बैत करे, तो 400 अफराद आगे बढ़े, उन सब ने जो उनके साथ मौत की बैत की और वाकई इकरमा रज़ियल्लाहु तआला इस जंग में शरीक हुए। तो बहुत बड़ी जंग थी और मुसलमानों के लिए काफी मुश्किल पेश आई थी। आखिरकार खालिद रज़ियल्लाहु तआला उनके साथ जो रास्ता था उसको लेकर रोमियो के दरमियानी सुकून पर हमला कर दिया, उनके मैमना मैसरा को छोड़ दिया, दरमियानी सुकून पर हमला किया ताकि मैमना मैसरा मुंतशिर हो जाए और मुसलमानों के साथ उनका जो मुकाबला है वो किसी कदर हल्का हो जाए और फिर इस तरह उनमें से जो भागना चाहे वो भाग सके। मैमना को एक तरफ छोड़ दिया और मैसरा को छोड़ दिया ताकि कोई भागना चाहे तो भाग सके, और इस तरह मुसलमानों पर जो फौजी जोर है उसमें किसी तरह तकलीफ हो जाए। इसका इसलिए फायदा मुसलमानों को इस जंग के खात्मे में, क्योंकि रोमियो का लश्कर जब बिस्तर हो गया और इधर उधर भागने लगा तो बहुत से उनके फौजी थे जो नहर में गिर कर हलाक हुए और बहुत से फौजी थे जो खंडक में गिर कर हलाक हुए। यानी ये खंडक जो उनके लिए महफूज पनाह का बना हुआ था और ये नहर जो महफूज पनाह का बनी हुई थी, लेकिन जब जंग का आगाज हुआ वो उनके लिए बहुत मुहलिक साबित हुई और बहुत से अफराद थे जो भागना चाह रहे थे, कोई मकाम नहीं मिला तो वो नहर में कूद गए, तो बहुत से अफराद नहर में कूद कर मर गए और बहुत से खंडक में गिर कर मर गए। इस तरह कहा जाता है कि 3000 मुसलमान शहीद हुए जंग में और 1,30,000 काफिर मारे गए। 1,30,000 काफिर इस जंग में मारे गए और 30,000 मुसलमान शहीद हुए। यहाँ तक कि शाम होते होते मुसलमानों को फतह हासिल हुई। इस जंग में मुसलमानों ने इशारों से नमाज पढ़ी, जैसा कि नमाज खौफ पढ़ी जाती है, यानी उन्हें मौका नहीं मिला कि वो बाकायदा जमात के साथ नमाज पढ़ सके। और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब खौफ इस कदर बढ़ जाए कि जमात के साथ या फिर पूरी नमाज के जो तरीक़ेकार है उस तरीके से नमाज न पढ़ी जा सकती हो, तो जंग करते करते इशारे से नमाज पढ़ी जा सकती है। तो इस तरह
ये एक बहुत बड़ी जंग थी, जंग यरमुक। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के दौर में होने वाली ये सबसे बड़ी जंग थी, जिसको जंग यरमुक कहते हैं। और यहाँ रूमियों की बुरी तरह शिकस्त हुई और रूमी हैरान रह गए कि इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी मुसलमानों ने उन्हें शिकस्त दे दी। तो अब आइए इस बात पर गौर करें कि इस जंग में मुसलमानों की कामयाबी के असबाब क्या थे। इस जंग में इतने बड़े खर्च के बावजूद भी फौजी कुव्वत के एतबार से और तादाद के एतबार से इतने बड़े फर्क के बावजूद भी मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाब की, उसके असबाब क्या थे। तो उसके बहुत सारे असबाब थे, बाद असबाब यह बयान किए। पहला सबब यह था कि वो अल्लाह ताला पर पूरी तरह रोका करते थे और उन्हें इस बात पर पूरे यकीन था कि दो कामयाबियों में से कोई एक कामयाबी जरूर मिलेगी, या तो वो कामयाब होंगे या जीत जाएंगे या फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएंगे। हर तरफ उनकी कामयाबी है, अगर शहीद होते हैं तो कामयाब होते हैं और अगर जीत जाते हैं तो भी कामयाब होते हैं। इसकी वजह से वो बहुत ही बेदिगरी और बहुत ही बहादुरी के साथ अल्लाह ताला पर एतमाद करते हुए वो लड़ते रहे। दूसरी वजह ये थी कि मुसलमानों की क़ियादत में मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक था और पूरी फौजें एक दूसरे के साथ तंसीर कर रही थी, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं था एक क़ियादत में और अपने कायद की हिदायतों के मुताबिक मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर वो काफिरों से लड़ रहे थे। और तीसरी वजह वो जंगी तदाबीर थी, जंगी हिकमत अमली थी जो खालिद रज़ियल्लाहु ताला ने यहाँ इख्तियार की थी कि उन्होंने अपनी फौज को मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम किया था और हमले का जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया था और उसके बाद रोमियों के जो रोमी अगरचे के खंदक और नहर के महफूज थे, खंदक और नहर के हिसाब में महफूज थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके इस हिसाब से उन्होंने फायदा उठाया और फौज के दरमियानी हुकूक से हमला करने की वजह से रूमियों का लश्कर जब वो मुनक़सिम हो गया और इधर उधर भागने लगे दोनों तरफ, तो एक हिस्सा जो है नहर में कूद कर मर गया और एक हिस्सा खंदक में गिरने की वजह से मर गया। तो ये जो फौजी हिकमत अमली उन्होंने अपनाई थी और जिस तरह उन्होंने हमला किया था, इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा था मुसलमानों की कामयाबी को। और तीसरा चौथी वजह ये भी थी कि उन्होंने जो हत्या की रूमियों ने उनमें ये भी थी कि उनके बहुत से आदमियों ने अपने आप को जंजीरों से बांध लिया था ताकि वो भाग न सके। उसका नतीजा ये होगा कि जब जंग शुरू हुई तो तेजी के साथ हरकत करने की उनके पास ताकत नहीं, तेजी के साथ हरकत नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से मुसलमान को तेजी के साथ उसका हमलावर हो गए थे, लेकिन उतनी तेजी के साथ वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और न आगे बढ़ पा रहे थे और न पीछे हट पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसको खत्म कर दिए थे या बुरी तरह वो जख्मी हो गए। तो ये चार असबाब हैं जो इस जंग में मुसलमानों की कामयाबी के यहाँ बयान किए। एक, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर मुसलमानों का एतमाद और तवक्कुल, और दूसरा इस बात पर पूरा यकीन कि उन्हें दो कामयाबियों में से कोई एक कामयाबी जरूर मिलेगी, या तो वो जीत जाएंगे या फिर वो शहीद होंगे। और दूसरा सबब था मुसलमानों की मुत्तहिदा क़ियादत, यानी एक क़ियादत के नीचे एक क़ियादत के तहत मुसलमान जमा हुए थे और पूरी तरह एक दूसरे के साथ मिलकर और एक दूसरे के तस्दीक करते हुए वो जंग करते रहे। और तीसरा सबब था जंगी हिकमत अमली जो खालिद रज़ियल्लाहु ताला ने इस जंग में अपनाई थी और फौज की जो तक़सीम उन्होंने की थी और जिस तरह से उन्होंने फौजों पर हमला किया, फौजों पर हमला करने का उनका जो अंदाज था। और जो चौथा सबब था कि रूमियों की गलती, क्योंकि अक्सर लोग उनके फौजियों में बहुत से लोगों ने जंजीरें पहन ली थी ताकि वो भाग न सके, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ और जंग में मुसलमानों का जब हमला हुआ तो वो तेजी के साथ हरकत नहीं करते। तो ये मारके यरमुक है जो मुसलमानों की कामयाबी पर खत्म किया। अब इसके बाद इस यरमुक के मारे किसी के मौके पर एक अहम वाक़या भी पेश आया
اور وہ تھا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی فوجوں کی قیادت سے معزول. خالد رضی اللہ تعالیٰ کی فوجوں کی قیادت سے معزول. اس جنگ کے دوران ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہدایتیں دی تھیں اس کے مطابق سارے مسلمان جمع ہو کر ادھر جنگ کر رہے تھے. اس کے دوران ہی انہیں ترتیبات کے دوران ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ عمر بن خطاب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیے ان میں ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے فوراً یہ حکم نامہ بھیجا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی فوجی قیادت سے معزول کر دیے جائے شام میں اور ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا قائد بنایا جائے. یہ جنگ ابھی جاری تھی, معرکہ پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کو مدینے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی خبر ملی اور مسلمانوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی خبر ملی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی خبر ملی. اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم نامہ بھی تھا کہ خالد فوج کی قیادت سے معزول کر دیے جائے اور ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو فوجیوں کا قائد بنایا جائے. بہرحال یہ جنگ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کی تو مکمل ہوئی اور اس کے فوری بعد ان کے اتفاق سے اور اس کے فوری بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ معزول ہو گئے. خالد رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد معزول ہو گئے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دو فریق یعنی یا تو خواہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو یا پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ ہو, دونوں اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں یا جو بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھی اس کو معزول کیا ان کے ذریعے سے یہی بات کی کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خاطر جو مناسب اقدام میں وہ اقدام کر رہے ہیں. اور خالد رضی اللہ تعالیٰ نے معذوری کو قبول کیا, باوجود یہ کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ ایک عظیم کمانڈر تھے اور سارے فوجی ان کی صلاحیت سے واقف تھے اور انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ ان کی تدبیروں کی وجہ سے ان کی حکمت عملی کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا خالد رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ میں کوئی شکست ہو سکتی ہو. ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں بلکہ عمر کے رب کے لیے لڑ رہا ہوں, لہٰذا وہ معذور ہو گئے. یہ یقیناً ایک عجیب پہلو ہے جو ان صحابہ کے زندگی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں معذور کیا؟ تو وہ ان کی سیاسی تدابیر اور ان کی اپنی رائے. اور یہ ایک عظیم بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں بھی اپنی یہ رائے رکھتے تھے. وہ اس وقت بھی چاہتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کیا جائے اور انہوں نے یہ رائے دی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تلوار کو, اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار کو درمیان میں نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے تھے اور یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ اپنا کوئی مشورہ دے اور اس کے مشورے پر اگر عمل نہ بھی کیا جائے تو اس کے بعد پھر مخالفت نہ کرے بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ جس طریقے پر جو حکمت عملی اس وقت اپنائی گئی ہے, جو ذاتی اس وقت اختیار کی گئی ان کے مطابق وہ خاموشی اختیار کرے. لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے, لیکن ان کا اشتہاد اپنے اشتہاد کے مطابق ان کی رائے یہی تھی کہ قیادت سے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کیا جائے. لہٰذا جیسے وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی رائے قبول کی. ان کا جو اشتہاد تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا اور انہوں نے سمجھا کہ فوجوں کی قیادت زیادہ مناسب ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی سواری کی جائے. اور یقیناً وہ جانتے تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو اور بہت ممکن ہے کہ انہوں نے, جیسا کہ عام طور پر مورخین کہتے ہیں اور بہت سے محققین اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات اس لیے معزول کیا
کہ کہیں لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں اور یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ کامیابی جو مل رہی ہے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے، جبکہ کامیابی تو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ تو لوگوں کو فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ خالد کی موجودگی میں یا خالد کی قیادتی میں مسلمانوں کو کامیابی مل سکتی ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں یا ان کے اندر فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اس فتنے سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے معذور کیا۔ اور یہ جو رائے ہے یہ زیادہ مناسب بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کیا، اسی طرح صادق نے بھی خاص بھی معذور کیا تھا عراق میں فروس پر، یعنی فارسیوں پر حادثیہ اور مدائن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں جو بڑی جنگیں ہوئی تھی وہاں ایک حادثیہ تھی، کسی کا بات نہیں آئے گا، لیکن یہاں کی مثال کے طور پر اس مثال کے لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بھی معذور کیا تھا، صالح کی خاص کو کب معذور کیا تھا؟ جبکہ حادثیہ جو فیصلہ کن جنگ تھی، جیسے رومیوں کے مقابلے میں یزموک ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ تھی، اسی طرح فارسیوں کے مقابلے میں حادثیہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ تو وہاں صالح کی وفات اللہ تعالیٰ آئی تھے حادثیہ میں، تو حادثیہ اور مدائن کی جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صالح کی وفات اللہ تعالیٰ کو بھی قیادت سے معذور کر دیا تھا، اور اس کے باوجود یہ کہ انہیں وہاں معذور کیے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید کر دیے گئے، یعنی جب ان کو خنجر کھوپا گیا اور اس کے بعد جب وہ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، تو اس موقع پر انہوں نے ایک شورا تشکیل دی کہ ان 6 افراد میں سے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا تھی اور کہا تھا کہ ان میں سے کوئی خلیفہ بنایا جائے۔ تو 6 افراد نے سعد رضی اللہ تعالیٰ کو شامل کیا تھا، جن کو خلیفہ بنانے کے لیے انہوں نے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا تشکیل دی تھی، مجلس شورا، اس میں صالح کی وفات اللہ تعالیٰ کو بھی رکھا تھا، باوجود یہ کہ خالد سے انہوں نے معذور کر چکے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جو معذور کیا تھا وہ صرف جہاد اور جنگی حکمت عملی کے طور پر تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکایتیں کی، سعد کی وفات اللہ تعالیٰ کے بارے میں عراق کے کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی آپس میں اختلاف ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے مسلمان فوجیں کمزور ہو جائے، تو انہوں نے اس وقت یہ بات محسوس کی تھی، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ صادق کی وفات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بہت اچھی قیادت انجام دے رہے ہیں، اور باوجود یہ کہ انہوں نے بڑی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بڑی بڑی کامیابی دی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی اختلاف کی وجہ سے فوجیں کمزور ہو جائے، تو اس مقصود کی وجہ سے انہوں نے صادق اللہ تعالیٰ کو معذور کر دیا تھا، اور کوئی دوسری وجہ نہیں، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ صادق اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کی کمزوری سمجھتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ 6 افراد شورا جو مجلس شورا بنائی گئی تھی، جن میں سے یہ بات صحیح تھی کہ ان میں سے کوئی خلیفہ بنایا جائے، ان میں انہوں نے صادق کے وفات اللہ کو شامل کیا۔ تو یہاں یہ مثال یہ بتانے کے لیے دی گئی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کیا، ویسے صادق کے وفات اللہ تعالیٰ کو بھی معذور کیا تھا، اور وہاں بھی ایک وجہ تھی اور وہاں بھی ایک مصلحت تھی، اور یہاں انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کیا، تو وہاں بھی اس مصلحت کے ساتھ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس فتنے میں بچ جائے کہ جنگ میں جو فتح حاصل ہو رہی ہے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے۔ یہاں جو ملاحظے بیان کی جا رہے ہیں دور صدیقی میں مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہوئی اس کے سلسلے میں، دور صدیقی میں مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہوئی اس کے بارے میں 2 ملاحظات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ انہوں نے اپنے تمام قائدین کو، تمام لشکر کے تمام قائدین کو اس بات کی ہدایت دی تھی کہ جو لوگ مرتد ہونے کے بعد پھر سے مسلمان ہوئے تھے ان میں کسی کو بھی جنگ میں شامل نہ کریں۔ مرتد ہونے کے بعد یعنی مرتدین کے ساتھ اور صدیق اللہ تعالیٰ کے دور میں سب سے پہلے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر خارجی فتوحات کی طرف مسلمان پڑے تھے، تو اپنے فوجی کمانڈروں کو اس بات کی ہدایت دی تھی کہ جو لوگ پہلے مرتد ہوئے تھے بعد میں پھر مسلمان ہوئے ان میں سے کسی کو بھی ان جگہوں میں شامل نہ کیا جائے، ان جگہوں میں شامل نہ کیا جائے۔ دو وجہ سے، ایک وجہ یہ کہ وہ قریب میں مرتد ہوئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ایمان میں اس کی پختگی نہ پیدا ہوئی ہو اور پھر اس کی وجہ سے مسلمان قوموں کو نقصان پہنچے، اور دوسرا یہ کہ ان کو سزا کے طور پر بھی کہ مسلمان
मुसलमानों को हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के लिए उनकी जरूरत नहीं, यानी उनको खुदा के तौर पर उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि मुसलमान फौजें उनकी मुहताज हैं। तो इस वजह से अली रज़ियल्लाहु तआला ने मुर्तदीन ने मुर्तद होने के बाद जब फिर इस्लाम में दाखिल हुए उनमें से किसी को इन जंगों में शरीक नहीं किया था। और दूसरी बात यह कि मुसलमान जिन इलाकों को फतह कर रहे थे वहां वो उन्होंने क़याम नहीं किया था, बल्कि वो उन ममालिक को फतह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो मुकम्मल तौर पर जंगें दरपेश आ रही थी। बाद औक़ात ऐसा होता था कि किसी इलाके को मुसलमान फतह करने से आगे बढ़ते थे, वहाँ फिर से जो काफिर जमा होते तो मुसलमानों को फिर से वहाँ जंग करना पड़ता। इसी तरह बाद इलाकों को मुसलमानों ने एक से ज्यादा मरतबा फतह किया, जैसे कि खीरा नामी मकाम है, खीरा को मुसलमानों ने फतह किया, लेकिन वहाँ फिर से रूमी का कंट्रोल हो गया, तो फिर से वहाँ जंग हुई। तो मुसलमान तेजी के साथ उनकी कोशिश थी कि जहाँ तक हो सके वह आगे बढ़ते जाए और जहाँ तक हो सके वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के पैगाम को आम करे। तो तेजी के साथ आगे बढ़े थे, किसी मकाम पर मुसलमान वहाँ रुक नहीं सके थे। बाद में फिर मुसलमान उमर ने ख़त्ताब की खिलाफत के दौर में उसके बाद फिर इस्तिक़लाल मुसलमानों को हासिल हुआ। वफ़ात अस-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की वफ़ात। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला जुमादल उखरा की 7 या 8 तारीख को वो बीमार हो गए। सन 13 हिजरी में जुमादल उखरा की 7 या 8 तारीख को बीमार हो गए। और जब उन्हें महसूस हुआ कि बीमार हो गए हैं और अपनी वफात के बारे में उन्हें एहसास हुआ, तो उन्होंने बड़े सहाबा को जमा किया, किबार सहाबा को उन्होंने जमा किया और अपने बाद खलीफा बनाने के लिए मशवरा किया। और उन्होंने इनके नाम को मुंतखब किया अपने बाद खलीफा बनाने के लिए, वो थे उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बाद खलीफा बनाने के लिए उन्होंने किबार सहाबा से मशवरा किया। सबसे पहले उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला से पूछा, जैसा कि तारीख की मुख्तलिफ किताबों में आता है। तो अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला खिलाफत के लिए बहुत मौजूद है, लेकिन उनकी तबीयत में सख्ती पाई जाती है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया कि वो सख्ती इसलिए है कि मैं नज़र नहीं करता, और बाज़ मामलात में मैं जहाँ सख्ती करता हूँ वहाँ मैं देखता हूँ कि उमर नज़र नहीं करते हैं। लिहाजा जब खिलाफत की जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी तो उनकी तबीयत में भी नरमी और एतदाल आ जाएगा। ये जवाब उन्होंने दिया अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला को। उसके बाद उन्होंने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला से मशवरा किया अपने पास खलीफा बनाने के लिए कि उमर रज़ियल्लाहु तआला को अपने पास खलीफा बनाना चाह रहे हैं। तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि उमर रज़ियल्लाहु तआला का बातिन उनके ज़ाहिर से ज्यादा अच्छा है और मुसलमानों में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने अली रज़ियल्लाहु तआला से मशवरा किया, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया और बताया कि मुसलमानों में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अलबत्ता तलहा रज़ियल्लाहु तआला से मशवरा किया तो तलहा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि अगर आप उमर रज़ियल्लाहु तआला को खलीफा बनाएंगे तो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो जानते थे कि उमर रज़ियल्लाहु तआला की तबीयत में ज़ाहिरी तौर पर सख्ती पाई जाती है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला लेटे हुए थे, अपने साथ जो सहाबा थे उनसे कहा कि मुझे बिठा दो, तो उन्हें बिठाया गया। तो उसके बाद बैठने के बाद फरमाया कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये दुआ दूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी मखलूक में जो सबसे बेहतर है उसको मैंने तेरी मखलूक की निगरानी हवाले की, तेरी मखलूकात में जो सबसे बेहतर है उस शख्स को मैंने तेरी मखलूक के रियायती मामलात की जिम्मेदारी दी। उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को बुलाया और ये वसीयत दिखाई, ये हुक्मनामा लिखवाया कि मेरे बाद उमर रज़ियल्लाहु तआला खलीफा होंगे। उसके बाद 22 जुमादल उखरा को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की वफ़ात हुई और उस वक्त उसकी उम्र 63 साल की उम्र में 22 जुमादल उखरा सन 13 हिजरी में उसकी वफ़ात हुई। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के कमरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में वो दफन किए गए। और हम जानते हैं कि रसूल शासक की तस्वीर जो उन्हीं के बिजली में आयशा रज़ियल्लाहु तआला की बिजली में अमल में आई थी, तो उन्हीं के पहलू में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की दफन किए गए। और उनकी खिलाफत की मुद्दत है 2 साल 2 महीने
वफात ने किस तरह इर्तिदाद के फितने का खात्मा किया और किस तरह इस्लामी फौजें वक्त की जो बड़ी ताकतें थी फारिस और रूम उनसे टकराई थी और कैसे उनके साथ बड़ी बड़ी जंगें हुई थी और उन्होंने शिकस्त दे दिया। उनके एक हिस्से में मुसलमान दाखिल हो चुके थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की वफात से पहले। तो ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला की मुख्तसर सीरत और उनकी दौर खिलाफत के मुख्तसर हालात हैं। और आइंदा हफ्ता इंशाअल्लाह हमारे पास जो अस्सिला तस्दीकिया है अब तक जो भी सबक हो चुका है उसके सवाल जवाब है। तो इंशाअल्लाह हम सवाल जवाब को आइंदा हफ्ता मुकम्मल करेंगे। तो अब आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो कर सकते हैं। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो कर सकते हैं। ठीक, बारकल्लाहु फीकुम। या आप सबका हम खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह पाक